Yeah, so hi everyone, and in this video we will be discussing the solution of problem C of the recent educational code forces round that happened today. So problem statement देखते हैं. Let me zoom in. You are a usual chat. So this is just time pass. So yeah, let's read from here. So more precisely, you want to spam the emote triangle of size k. It consists of 2k minus 1 messages. As you can see, if k is 3, it will consist of 2k minus 1, which is 5 messages, right? So ये एक actually में एक triangle है, right? And each row is actually a message. So the first message consists of one emote, as you can see 1. Second message 2, then 3. Since k 3 था तो k 3, then अब फिर से decrease करते जाओ, मतलब फिर 2 फिर 1. Now, of course, most of the channels have auto moderation. So auto moderator of the current chat will ban you right after you spam at least X emotes in succession. You can assume you are the only user. Now you are interested how many messages will you write before getting banned? Maybe you'll not get banned at all. Okay. Yeah. So basically, let's first discuss the problem statement, right? So problem statement ऐसा है कि तुम्हें actually में एक triangle बनाना है मैसेज कर करके, और लेट्स से कि अगर k इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो यू विल बी गिवन k. सो बेसिकली जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा कि पहले तो एक स्टार है, देन फिर 2 स्टार है, मतलब स्टार में बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में ये इमोट है. देन फिर 3 स्टार्स बनाओगे तुम, देन फिर 4 स्टार्स बनाओगे तुम. अब मैं स्टार्स बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, अब बस बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 है. फिर तुम्हें 3 स्टार्स बनाने, मतलब चलो ठीक है बना लेते हैं. फिर तुम्हें 2 स्टार्स बनाने, फिर तुम्हें 1 स्टार बनाना है, और जब जाके ये पूरा मैसेज कंप्लीट होगा. बट द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास, ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना. या नाउ दिस इज करेक्ट. दिस इज एक्चुअली अ ट्राइंगल, राइट? एज यू कैन सी एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है. बट द पॉइंट इज कि यू ओनली हैव एक्स emotes available, you can say. And now the problem is asking कि how many messages can you write? What is the meaning of message? Message is nothing but this entire row. This is one message, this is another message, this is third message, this is fourth message. Right, so you can assume that you have only X emotes available, and the problem asks कि how many messages will you be able to write, right? So samples देखते हैं क्या है. So yeah, first sample, right? 4 and 6. I'll say okay. 4 and 6 मतलब कि फर्स्ट मैसेज लेट्स से उसमें मैं 1 इमोट यूज कर रहा हूँ, देन सेकंड मैसेज में मैं 2, देन थर्ड मैसेज में मैं 3. सिंस के इज 4 तो फिर 4 तक जाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा, राइट? 3 2 1 ऐसा करके ये टोटल ट्राइंगल बन रहा होता. बट यू ओनली हैव 6 इमोट्स अवेलेबल. मैंने सोचा ठीक है, लेट्स फाइंड आउट टोटल एज वेल कि हाउ मेनी टोटल इमोट्स वी हैव यूज्ड टिल नाउ. मैं बोलूंगा ओके, अगर मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है तो मैंने आई हैव यूज्ड 1. अगर मैंने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया है, राइट, लेट्स सी, अगर मैंने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया लिखते हुए, तो मैं बोलूंगा मैंने टोटल कितने यूज किए? टोटल 3, विच इज नथिंग बट 2 + 1, राइट? तो आई से ओके, टोटल इज नथिंग बट 3 हियर. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रो I have used total of 3 modes, 1 from here, 2 from here, which is nothing but summation of these prefixes, right? So I'll say okay, what about this? Well, if I have completed third message as well, so you'll say what is the sum of this prefix? It is nothing but 3 plus this, right? Because this is prefix of I minus 1 and this is nothing but value, right? I'll say yeah, this is nothing but 6, then 10, then 13, then 15, then 16. This is nothing but sum of prefixes, right? अब ये देखो कि तुम्हें इस प्रॉब्लम में, मतलब इस सैंपल में x 6 दिए हुए हैं. इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हें 16 टोटल इमोट्स होते तुम्हारे पास तो तुम पूरा मैसेज लिख देते, राइट? और उस केस में तुम्हारा आंसर क्या होता कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, राइट? इट्स नथिंग बट रो यू कैन से रो नंबर. अगर तुम्हारे पास 16 इमोट्स होते तो तुम बोलते कि यार मैंने तो पूरा ट्राइंगल ही बना दिया, तो उस केस में आंसर 7 हो जाता, करेक्ट? बट इस पे तुम्हारे पास सिर्फ 6 मैसेजेस हैं, तो मैंने बोला ठीक है, मैं चेक किया एक एक करके, क्या मैं एक मतलब वो भर सकता हूँ? तो मैंने चेक किया, ओके, एक भरने में मुझे टोटल 1 लग रहे हैं. एक्चुअली भरना भी नहीं है, एक्चुअली ये चीज़ पढ़ो.
Note that if you get banned as a result of writing a message, this message is also counted. इसका मतलब क्या है कि let's say अगर तुम्हारे पास चार मतलब इमोट्स अवेलेबल होते हैं, तो तुम बोलते ठीक है मैंने एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, मैंने टोटल 3 अभी यूज कर लिया, मेरे पास एक और बचा है। मैंने बोला ठीक है अब मैंने इसको भरना स्टार्ट किया, अब तुम बैन हो जाओगे। तो तुम्हारा आंसर इस केस में थर्ड आएगा, क्योंकि मैं थर्ड एटलीस्ट थोड़ा स्टार्ट तो कर पाया ना भरना। तो ये है पॉइंट। मैंने बोला ठीक है। अब यू कैन से कि टोटल इसके पीछे मतलब जब हमने वैल्यू स्टार्ट ही नहीं किया तो 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यू हैव लेट्स से सम x इमोट्स अवेलेबल, और मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से मैंने इस रो को भरना स्टार्ट भी कर दिया, तो मुझे ये पता है ना कि अगर मैं इस रो को भरना स्टार्ट कर रहा हूं, लेट्स से 1 2 3 4 और ये रो है, लेट्स से अगर मैंने एक स्टार भी यहाँ पे लिखा और मैं अगर लेट्स से इसको भरना स्टार्ट भी कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब है ना कि मैंने ऊपर के सारे भर दिए होंगे। ऊपर मैंने जितने भी यूज किए उतने तो मैंने भर ही दिए होंगे, और फिर अब मुझे मेरे पास थोड़े बहुत बच गए तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं भरना। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने प्रीवियसली प्रेव भर दिए थे, तो अगर x ग्रेटर देन प्रेव है तभी मैं इस रो को भरना स्टार्ट कर पाऊंगा, राइट? दैट डज मेक सेंस, राइट? क्योंकि लेट्स से अगर तुम्हारा x 10 है लेट्स से, और प्रीवियस जो है वो 8 थे, मतलब प्रीवियस मतलब टोटल यहाँ का प्रीवियस 8 है, मतलब टोटल 8 भरने थे इमोट्स, तो तुम बोलोगे ठीक है मैंने 8 भर दिया, मेरे पास 2 बचे हैं, तब ना मैं यहाँ पे स्टार्ट कर पाऊंगा भरना। लेट्स से अगर यहाँ पे जो प्रीवियस है वो 10 ही होता, तो मैं बोलता ठीक है मैंने 10 भर दिए, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो उस केस में आंसर ये नहीं होती रो, क्योंकि मैंने इसको भरना स्टार्ट ही नहीं कर पाया ना, मेरे पास तो 0 बचे अवेलेबल। समझ आ रही है बात कि मैं स्टार्ट कब कर पाऊंगा एटलीस्ट किसी रो को भरना? मैं बोलूंगा कि अगर पीछे जितने भी टोटल लग रहे थे उतने से ज्यादा है अगर x, तभी मैं कर पाऊंगा। तो मैंने यही चेक किया, मैंने बोला ठीक है लेट्स लुक एट रो फर्स्ट। मैंने चेक किया कि क्या मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ भरना, तो मैंने चेक किया मेरा x क्या है 6 है, राइट? इस केस में x 6 है। मैंने बोला ठीक है क्या ये 6 ये 0 से बड़ा है? मैंने बोला हाँ। इसका ये मतलब है कि हाँ मैं इसको तो स्टार्ट कर पाऊंगा भरना, राइट? स्टार्ट यू कैन से। व्हाट अबाउट दिस गाय? मैं बोलूंगा ठीक है अगर मैं सेकेंड रो पे हूँ, लेट्स से ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 1 भरना पड़ता है, यहाँ पे 2 भरना पड़ता है। मैंने बोला कि क्या मैं सेकेंड रो को स्टार्ट कर सकता हूँ क्या भरना? अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका ये मतलब है कि मैंने ऊपर के सारे लोग भर दिए। ऊपर कितने यूज हुए थे? ये बंदा यूज हुआ था। तो मैंने चेक किया क्या ये 6 1 से बड़ा है? अगर 6 1 से बड़ा है स्ट्रिक्टली, इसका ये मतलब है कि मैंने जब ऊपर के लोग भर दिए फिर भी मेरे पास कुछ एलिमेंट्स बच गए, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ सेकेंड को भरना। तो सेकेंड रो को भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। क्या मैं थर्ड को स्टार्ट कर सकता हूँ? तो मैंने बोला ठीक है पीछे कितने लोग चाहिए? तुमने बोला 3 चाहिए यार पीछे, राइट? एज यू कैन सी कि ये 2 रोज हैं। अब मैं थर्ड रो को पूछ रहा हूँ कि स्टार्ट कर सकते हैं क्या? थर्ड रो को स्टार्ट करने के लिए मैं बोलूंगा कि यार तुमने पहले जो जितने भी एलिमेंट्स लग रहे थे पीछे वो सारे भर दिए हैं क्या, और अभी भी x बच रहा है क्या? तो मैं वही पूछूंगा कि x जो है वो ये टोटल, अगर ये टोटल है टोटल, तो x टोटल से बड़ा है क्या? अगर x टोटल से बड़ा है मतलब x थोड़ा बच गया होगा ना टोटल यूज करने के बाद, तब ना मैं इसको स्टार्ट कर पाऊंगा एटलीस्ट। तो मैंने वही पूछा कि अब अगर मैं थर्ड रो को भर रहा हूं तो क्या x जो कि ये है क्या ये इससे बड़ा है क्या, राइट? क्या मैंने शुरुआत के 2 रोज भर दिए हैं क्या कंप्लीटली, उससे और मेरा बच रहा है क्या अभी और मेरे पास इमोट्स? तो मैंने बोला हाँ यार बच जाएगा। तो मैंने बोला ये भी ट्रू है, इसको भी मैं भर पा रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस गाय? व्हाट अबाउट दिस गाय? तो मैं पूछूंगा ओके क्या ये x पीछे वाले के टोटल से बड़ा है क्या? तो तुमने बोला यार 6 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो तुमने बोला नहीं इसको तो तुम स्टार्ट ही नहीं कर सकते भरना। आ रही बात समझ में? बस अगर इसको नहीं कर सकते तो आगे वालों को किसी को भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो तुम ये देखोगे कि एक्चुअली तुम कुछ भी एरे ले लो ना, और ये जो स्टार्ट फिलिंग वाला जो है ये इस टाइप का ही बनेगा। मतलब पहले तो तुम कुछ रोज भर पाओगे, फिर रोज को नहीं भर पाओगे, करेक्ट? अब क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है कि ठीक है तुमने इसको भी भर दिया, 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 कौन सा तुम लास्ट रो भर रहे हो? कौन सा रो है जो तुम लास्ट में भरोगे? वही क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, विच इज नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ दिस लास्ट रो। इस केस में भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि यार मुझे इंडेक्स बताओ लास्ट रो का, विच इज नथिंग बट थर्ड। समझ आ रही है बात? थर्ड। सो द पॉइंट इज, अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है तो अब पॉइंट क्या है कि तुम्हें लेट्स अज्यूम कि एक एरे है जो कि इस टाइप से है कि पहले तो कुछ ट्रू आ रहे हैं, लेट्स से यहां तक ट्रू है, अब उसके बाद फॉल्स आए जा रहे हैं।
ठीक है, और तुम्हें मुझे बताना है कि ये ट्रू का इंडेक्स क्या है। तुम्हें क्या बताना है मुझे, ये ट्रू का इंडेक्स क्या है। करेक्ट। अभी एक तरीका तो यार ये हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि एक एक करके चेक करते जाओ, जो मैंने एक्चुअली में यहाँ पे किया। मैं पहले फर्स्ट पे गया, मैंने चेक किया कि क्या हम भर सकते हैं, मैंने सेकंड पे चेक किया क्या हम भर सकते हैं। चेक कैसे करना है कि पीछे वाले के टोटल से देखते जाओ एक्स बड़ा है क्या। मैं थर्ड पे गया, मैंने चेक किया, मैं फोर्थ पे गया, मैंने चेक किया। समझ आ रही बात। जैसे ही मुझे फॉल्स मिला, मैं समझ गया कि यार इधर नहीं भर सकते, मतलब आंसर पीछे वाला ही है। बट द पॉइंट इज, अगर तुम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देखोगे तो के काफी बड़ा है, मतलब 10⁻9 तक है। और ऐसे कितने रोज होंगे, अगर के, अगर कुछ के है तो ऐसे रोज कितने होंगे तुम्हारे पास, 2k-1। तो क्या तुम ऐसे लीनियरली जाके चेक कर पाओगे क्या। आंसर इज नो। काफी टाइम लग जाएगा ना, ऑर्डर ऑफ के हो जाएगा, और के काफी बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ के तो यार नहीं चल पाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, मैंने सोचा क्या हम कुछ स्मार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो स्टार्ट फिलिंग वाला वर्डिक्ट था ना, जो मैंने बनाया था ऊपर, वो कुछ ऐसा ही दिखेगा किसी भी केस के लिए कि शुरुआत में कुछ ट्रू आएंगे, क्योंकि शुरुआत के कुछ तो रोज तुम भर ही पाओगे ना, उसके बाद सारे फॉल्स आते जाएंगे, राइट। एंड प्रॉब्लम एक्चुअली आस्क यू कि यार ये ट्रू का मुझे इंडेक्स बता दो। द पॉइंट इज नाउ एक्चुअली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बाइनरी सर्च। कैसे। बाइनरी सर्च में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई मिड पता चल गया रेंज का, अब इस मिड से तुम क्या डिसीजन ले पा रहे हो क्या कि तुम्हें आंसर यहां मिलेगा या यहां मिलेगा। अगर हाँ तो सही है, अगर हाँ मतलब बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो कैसे लगाएंगे बाइनरी सर्च, तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। अब तुम ऐसा सोचो, अब तुम ऐसा सोचो कि ठीक है लेट्स से ये रेंज थी बाइनरी सर्च की, और तुम्हारा जो मिडिल एलिमेंट है वो ये बंदा आया। लेट्स से कि ये मिडिल एलिमेंट आया, लेट्स से। मैंने बोला ठीक है, व्हाट इज द वर्डिक्ट, व्हाट इज द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट कैसे पता करेंगे, वर्डिक्ट कैसे पता करेंगे, तुम्हें पता है कि वर्डिक्ट कैसे पता करेंगे कि लेट्स से अगर मुझे इन पीछे के सभी का टोटल पता है कि टोटल कितना लग रहा है, लेट्स से मुझे किसी मैजिक के थ्रू ये टोटल पता है कि लेट्स से अगर ये लेट्स से कि फिफ्थ फिफ्थ रो है, तो मुझे पता है कि शुरुआत के 4 रो में टोटल कितने लगेंगे किसी किसी मैजिक के थ्रू। तो मेरा बस काम क्या है, चेक करना ये क्या x ग्रेटर देन टोटल है क्या। अगर x ग्रेटर देन टोटल है, इसका ये मतलब है कि इसका वर्डिक्ट ट्रू है। अगर लेस देन है तो इसका वर्डिक्ट फॉल्स हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो लेट्स से कि तुम्हें वर्डिक्ट भी पता है, अभी हम देखेंगे अच्छे से, डोंट वरी। अब लेट्स से तुम्हें वर्डिक्ट भी पता है और ये मिड आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिड है और ये फॉल्स है, तो क्या मुझे राइट में मुड़ना चाहिए क्या। द आंसर इज नो, क्योंकि अगर ये बंदा फॉल्स है तो इसके आगे वाले सारे फॉल्स होंगे, मुझे पता है। क्योंकि एरे का तो स्ट्रक्चर यही है ना कि पहले कुछ ट्रू फिर कुछ फॉल्स। तो अगर ये मैं इस पे खड़ा हूं तो मुझे पता है कि आगे वाले सब फॉल्स ही होने वाले हैं। तो द पॉइंट इज, अगर मैं यहां पे हूं तो मुझे लेफ्ट में मुड़ना चाहिए। तो अगर वर्डिक्ट फॉल्स आता है तो मैं बोलूंगा मूव लेफ्ट, क्योंकि वहीं पे आंसर मिल पाएगा मुझे, लेफ्ट में कहीं पे। ये बात क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स से, लेट्स अज्यूम इन अदर सिनेरियो, तुम यहाँ पे मूव तो कर गए, तुम्हारी रेंज ये हो गई। लेट्स से अब तुम्हारा मिड ये बंदा आता है, लेट्स से ये है मिड। अब मैं बोलूंगा अगर वर्डिक्ट ट्रू है तो क्या करना है। अब अगर वर्डिक्ट ट्रू है तो मुझे एक बात बताओ कि सिंस ये बंदा ट्रू है, तुम्हें पता है कि पीछे वाले सारे ट्रू होंगे, और तुम्हें तो लास्ट ट्रू की वैल्यू चाहिए, तो क्या मुझे पीछे जाना चाहिए। द आंसर इज नो। मैं बोलूंगा कि मुझे तो आगे जाना चाहिए, राइट। बट ये बंदा भी जो है, ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि लेट्स अपडेट आर आंसर, तो मैं आंसर में ये मिड डाल दूंगा, अपडेटिंग, राइट। क्योंकि मुझे मुझे पता नहीं ना कि आगे मुझे एक और ट्रू मिलेगा कि नहीं। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है अभी अपडेट कर लेते हैं आंसर को, और राइट मूव कर जाते हैं, क्योंकि यही ऑप्टिमल है। अगर आंसर होगा तो राइट में ही होगा, जो कि है ऑब्वियसली। अदरवाइज यही जो बंदा है वही आंसर होगा। तो इसलिए मैं आंसर में मिड डाल दे रहा हूँ, विच इज नथिंग बट अपडेटिंग। और मैं बोल रहा हूँ मूव राइट। अच्छा, मूव लेफ्ट और मूव राइट कैसे करते हैं, तो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी बाइनरी सर्च पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि लेट्स से अगर एल यहाँ पे, आर यहाँ पे, और ये मिड है, और मैं बोल रहा हूँ कि मूव लेफ्ट करो, मतलब अब रेंज ये बन जाएगी, तो आर क्या हो जाएगा, मिड-1। और अगर मैं बोलता हूं कि नहीं, अगर अगर मैं बोलता हूं कि रेंज तुम्हारी ये थी, मिड ये था, और तुम्हें राइट मूव करना है, तो तुम्हारी रेंज ये बन गई, तो एल क्या हो जाएगा, मिड+1।
अब अगर तुम्हें ये भी समझ आ जाता है कि बाइनरी सर्च लग रहा है, बट अभी हमने एक चीज नहीं डिस्कस की है, जो कि है कि एक टोटल कैसे निकालेंगे। मैंने बोल दिया था पहले कि मैजिक है कुछ, बट मैजिक क्या है, कोड तो लिखना पड़ेगा ना उसका। तो आओ अब वो देखते हैं। लेट्स अज्यूम अभी मेरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रो पे हूं, लेट्स से ith रो पे हूं। मुझे ये निकालना है कि टोटल कितना इमोट्स लगेंगे फर्स्ट i-1 रोज को भरने में, करेक्ट। अब मुझे पता है, क्या मुझे पता है कि फर्स्ट रो में तो फर्स्ट इमोट लग रहा होगा, सेकंड में सेकंड, लेट्स से कुछ के है, ठीक है, के मतलब हमें कुछ दिया हुआ है, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, अप टू के में। फिर यहाँ पे k-1 लगेगा, फिर घटता जाएगा ना, फिर k-2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा जो i है वो यहाँ पे कहीं पे है, लेट्स से कि इस रेंज में, लेट्स से यहाँ पे है i, तो तुम्हें क्या निकालना है कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस टोटल, राइट। वो एक्चुअली में इजी है, वो इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट i-1 नेचुरल नंबर्स, जो कि कितना होता है, मतलब अगर तुम 1 2 3 4 ऐसे करके n तक i तक सम करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, i इंटू आई प्लस 1/2। तो अगर i-1 निकालना है तो i-1 से चेंज कर दो i को, तो ये हो जाएगा i-1 और ये i, तो i इंटू i-1/2। इसका ये मतलब है कि अगर ये जो पर्टिकुलर, जो कि लेट्स कॉल इट मिड, अगर मिड लेस देन और इक्वल टू के है, तो तुम्हें पता है कि जो टोटल तुम्हें प्रीवियस का पता करना है वो क्या है, मिड इंटू mid-1/2, राइट। ये i की जगह मैंने मिड लिख दिया। व्हाट अबाउट द अदर केस, कि अभी 1 2 3 4 अप टू के लग रहे थे, फिर k-1 k-2 ये लग रहे हैं ना, पर्टिकुलर 3 2 1। व्हाट अबाउट अगर मेरा i या जो मेरा मिड है वो इधर इस वाले रेंज में आता है, तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स से मिड यहाँ पे आता है, तो ये मिड का जो रो होगा उसका नंबर क्या होगा, तो ये क्या है, मिड का ये रो नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये वैल्यूज लगेंगी और ये रो नंबर है, तो ये 1 2 3 4 अप टू के, फिर ये वाला k+1 रो होगा ना, फिर ये वाला k+2 होगा, फिर k+3 होगा एंड सो ऑन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऐसा करो, अब मुझे क्या जानना है, लेट्स से ये मिड है, मुझे ये जानना है कि यार यहाँ पे टोटल कितना है लोग, यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, लेट्स से मुझे इस पूरे टोटल का वैल्यू पता है, लेट्स से मुझे इस पूरे टोटल का वैल्यू पता है, जो कि है कैपिटल टी से स्टार्ट होने वाला टोटल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेट्स से ये वाली वैल्यू निकालनी है जो कि मेरा टोटल है, ठीक है, टीओटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू टीओटी, और लेट्स से मुझे ये वाली वैल्यू पता है, ग्रीन वाली, लेट्स से कॉल इट जी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो येलो वाली वैल्यू होगी टीओटी इज नथिंग बट दिस होल टोटल ऑफ द एरे माइनस दिस जी, है ना। यही तो है यार, अगर टोटल है और तुम्हें ये भी पता है, लेट्स से मैं सॉरी, तुम्हें तो ये निकालना है, तुम्हें अगर ये भी पता है ग्रीन, तो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, मैंने बोला हाँ लिख सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ग्रीन है ये नथिंग बट 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, अप टू k-2 जा रहा है। इसका ये मतलब है ये फिर से वही है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट k-2 नेचुरल नंबर्स, इसका भी मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैं यहाँ से भी टोटल निकाल लूंगा। अच्छा ये टोटल कैसे निकालेंगे, पूरे का टोटल, तो ये तो और इजी है। ये कैसे इजी है, मैं बोलूंगा पूरे का टोटल क्या ही होगा, 1 2 3 अप टू के, फिर k-1, फिर k-2 1। अब तुम इसको ऐसे सोचो कि ये कुछ नहीं है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये ऐसा है, मतलब यहाँ से तो फर्स्ट के नंबर्स का है, फर्स्ट के नंबर्स का सम है, और ये फर्स्ट k-1 नंबर्स का सम है। तो इसका भी वैल्यू तुम्हें पता है, ये क्या हो जाएगा, k इंटू k+1/2, और ये क्या हो जाएगा, k इंटू k-1/2। अगर तुम इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू k+1 माइनस के इंटू k-1, और उसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर तुम k कॉमन ले लोगे तो k+1 माइनस k+1 आई गेस हो जाएगा कुछ, k इंटू k+1 माइनस k इंटू k-1, सो k+1 माइनस k-1, और ये एक्चुअली हाँ
wait, I think I've done some mistake. K into k plus 1 by 2 is correct, k into k minus 1 by 2 is correct. So I'll say okay, okay, k into k plus 1 by 2, अगर if we take the 2 common, it will become k into k plus 1 plus, oh okay, actually I was taking minus, it will become k minus 1. अभी अगर तुम k कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, k plus 1 प्लस k माइनस 1 बाई 2, और ये 1 1 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2k, मतलब 2k स्क्वायर बाई 2, तो ये k स्क्वायर हो गया टोटल. इसका ये मतलब है, इसका क्या मतलब है, अभी हम क्या कर क्या रहे थे एक्चुअली, हम वर्डिक्ट जानने की कोशिश कर रहे थे ना, और वर्डिक्ट के लिए हमें पीछे वाले नंबर्स का सम चाहिए. तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर इंडेक्स जो है अगर ऐसा है 1 2 3 अप टू k, देन k माइनस 1 k माइनस 2 1, तो मैंने ये डिस्कस कर लिया कि अगर मिड मेरा इस रेंज में आता है तो भी हम टोटल निकाल सकते हैं, और अगर इस रेंज में आता है तो भी हम टोटल निकाल सकते हैं, और अगर वो टोटल, अगर जो x है वो टोटल से बड़ा है तो ये ट्रू इंस्टेंस है, और अगर नहीं है तो वो फॉल्स इंस्टेंस है. बेस्ड ऑन दीज डिसीजन आई विल टेक, मतलब वेदर टू मूव लेफ्ट और वेदर टू मूव राइट. अगर यहां तक समझ आता है तो अभी थोड़ा पॉज करो, सोचो अच्छे से, अब हम कोड की तरफ चलते हैं. ठीक है, मतलब अभी कोई नहीं, कोड देखोगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं. लेट्स मूव टू द कोड. I'll say okay, ठीक है, आई हैव टेकन द इनपुट, ये मैंने एक आंसर ऐसे इनिशियलाइज कर लिया है, और अभी मैंने रेंज बनाई है. तो रेंज क्या हो सकती है, रो की वैल्यूज, राइट, रो के नंबर्स. मैंने बोला 1 से स्टार्ट करके 2 के माइनस 1 तक हो सकती है रेंज, एज यू कैन सी. मतलब अगर मेरे पास 1 2 3 अप टू के, फिर के माइनस 1 के माइनस 2, मतलब ऑब्वियसली तो क्वेश्चन में दिया है कि के माइनस 2 2 के माइनस 1 मैसेजेस हो सकते हैं, तो वही उसी से मैंने राइट का इनिशियलाइज किया. अब ये टोटल क्या है कि ये टोटल एक्चुअली के स्क्वायर ही है, अगर तुम इसको वो करोगे ना, ये एक्चुअली में के स्क्वायर ही है, मतलब के स्क्वायर प्लस के माइनस के, तो के स्क्वायर ही हो गया वो. तो ये टोटल क्या है एक्चुअली में, ये टोटल ये है, जो ये सारे लोग लिखे हैं ना, इन सब का सम, सारे लोगों का सम. ठीक है, अब मैंने वही बाइनरी सर्च फंक्शन लगाया, मतलब लूप लगाया कि वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, फाइंड मिड. तो मिड है एल प्लस आर बाई 2. अब ये रिक्वायर्ड क्या है कि ये पीछे के टोटल, मतलब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पूछूंगा कि यार पीछे के टोटल्स क्या है इस पूरे का टोटल, तो वो निकालने का हमने दो तरीके डिस्कस किए. कि अगर वैल्यू, मतलब अगर मिड, एज यू कैन सी, अगर मिड के से बड़ा है, मतलब हम यहाँ पे हैं कहीं पे, तो कैसे निकालेंगे. तो मैंने क्या किया देखो, अब अगर हम इस वाले पार्ट में, पार्ट 2 में, तो हम ऐसे निकालेंगे कि जो ये टोटल है, मतलब पीछे के लोगों का सबका सम इज नथिंग बट होल टोटल विच इज दिस, जो हम पहले निकाल चुके हैं, विच इज के स्क्वायर माइनस दिस ग्रीन पार्ट. अब यार ये ग्रीन पार्ट जानने के लिए तुम्हें ये के माइनस 2 पता होना चाहिए ना, वैल्यू. तो ये कैसे पता करेंगे, ये कुछ नहीं है, देखो ये कुछ नहीं है, तुम ये देखो कि अगर ये रो नंबर k प्लस 2 है, जो कि एक्चुअली में अभी मिड है, तुम इसके साथ वो निकाल लो डिफरेंस k के साथ, वो कितना आएगा, 2 आएगा. तो वैल्यू कुछ नहीं होगी, k माइनस 2 ही होगी. तो मैंने वही किया, डिफरेंस निकाला पहले मिड माइनस के से, और वैल्यू जो है वो k माइनस डिफरेंस होगी. अब तुम्हें पता है रिक्वायर्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड ये होगा यार टोटल माइनस दिस ग्रीन पार्ट. तो टोटल माइनस ग्रीन पार्ट विच इज नथिंग बट वैल्यू इंटू वैल्यू प्लस 1 बाई 2. वही हमने किया यहाँ पे, राइट, सम ऑफ फर्स्ट के माइनस 2 नंबर्स, तो वो यही होता है. सिमिलरली अगर मेरा मिड जो है वो ये वाले रेंज में आता है, मतलब ये वाले जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कहीं पे आता है, तो काफी सिंपल है, वो तो काफी सिंपल है. सम ऑफ फर्स्ट मिड माइनस 1 नंबर्स निकालने हैं तुम्हें टोटल के लिए, तो मैंने वही किया. रिक्वायर्ड जो है वो मिड इंटू मिड माइनस 1 बाई 2 है. अब अगर तुम्हें यहां तक समझ आ रहा है तो तुमने रिक्वायर्ड निकाल लिया. अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम यहाँ पे है वर्डिक्ट निकालना. वर्डिक्ट क्या होगा, तुम्हें चेक करना है कि अगर x ग्रेटर देन रिक्वायर्ड है, इसका ये मतलब है कि तुम ये वाली रो को फिल कर रहे होगे, तो ये ट्रू इंस्टेंस हुआ. तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, क्या x ग्रेटर देन रिक्वायर्ड है, मतलब ये ट्रू इंस्टेंस है, तो हमें क्या करना चाहिए, आंसर को अपडेट करना चाहिए और राइट मूव कर जाना चाहिए. तो मैंने वही किया. एल्स
एल्स हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट मूव करना चाहिए। तो मैंने बोला r इज इक्वल टू मिड माइनस 1, और इवेंचुअली जब तुम ये प्रोसेस करोगे तो तुम्हें लास्ट ट्रू जो है तुम्हारा मतलब आंसर जो है इस पे आके अपडेट हो जाएगा, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस आंसर को प्रिंट करा देना। करेक्ट। तो अगर तुम्हें पहले से तुमने बाइनरी सर्च ऑन आंसर या बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस किए हैं तो तुम्हें इसको समझने में इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। बट अगर तुमने कभी बाइनरी सर्च नहीं यूज किया है तो आई सजेस्ट कि पहले बाइनरी सर्च को अच्छे से पढ़ो, फिर यहाँ पे आके देखो कि हम ये क्या कर रहे हैं। राइट, एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट होता है कि विच इज द कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट बाइनरी सर्च ऑन आंसर। राइट, हम आंसर्स पे बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो बाइनरी सर्च कभी भी लगाना है ना तो बस ये मेक श्योर करो कि अगर हम तुम्हें मिड मिलता है तो क्या तुम डिसीजन ले पा रहे हो क्या कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अगर तुम डिसीजन ले पा रहे हो ना तो फिर बाइनरी सर्च लग जाएगा। सही है। अच्छा, इसकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? लॉगरिथमिक ऑफ रेंज साइज, और रेंज साइज क्या है यहाँ पे? रेंज साइज कुछ नहीं, 2k माइनस 1 है, तो वो लॉगरिथमिक ऑफ 2k ही होगी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये लॉग के में चल जाएगा। क्या लॉग के हमारा सफिशिएंट है? तो मैं बोलूँगा हाँ, लॉग के कितना ही होगा, 10 टू द पावर 9 है, तो लेट्स से अराउंड 30 लॉग के 30 इंटू टी, तुम्हारा सोल्यूशन चल जाएगा। तो होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो मैं आई सजेस्ट कि थोड़ा सा बाइनरी सर्च पहले पढ़ लो, फिर इसको आके देख लेना। और भी अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो एंड आई विल रिप्लाई। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।